नमस्कार जी, कैसे हो आप? नमस्कार मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? बस बढ़िया। शुरू करें? यस मैम, यस मैम। Hello everyone. I'm Kalpana Chaudhary, founder of Social Tables, managing trustee and chairperson of Janseva Foundation, Being the Change, and Lagna.com. Lagna.com is a matrimony portal for differently able and acid attack and cancer survivors. Along with it, I'm also the co-chairperson of ASSOCHAM State Women Entrepreneur Development Council, GSDC, member at Wikiflow CII, IWN Maharashtra Women Economic Forum, and a TEDx speaker. Social Tables is committed to sustainable development program with societal well-being and environmental consciousness. Social Tables, in association with National Innovation Foundation, India's autonomous body of Department of Science and Technology of India, introduced the Innovation Talk Show, where the guest speaker for today is Master Sikanto Mandal from Mathura, Uttar Pradesh. He has contributed in the innovation of manual waste lifting and dumping cart. Sikanto Mandal nurtured a thought of cleanliness in his mind. However, his idea of cleanliness was such that those cleaning should not touch the dirt. The innovation envisages a future waste management with a mission of zero garbage society. It's a manual waste pick transfer dispose machine that picks up garbage, solid waste, transfer transfer it from point of use and disposable direct or indirect to the point of collection or treatment of landfill, leading to a standardized approach, and that too without the use of hand, a blessing for waste pickers, waste collectors, and junk dealers. Innovation lies in the fact that there is a complete separation of garbage from worker spirit and letter compliance to objectives strategy of Swachh Bharat mission, eradication of manual scavenging, modern and scientific municipal solid waste management. It will upgrade the work condition of informal sector workers in waste management, rack pickers, for example. The innovation makes this happen in modern and scientific manner through its facilitation of systematic process of for waste collection and eventually waste segregation or sorting, which is very important for overall solid management process. He has been recognized under Inspire Manak Award scheme of the Department of Science and Technology. Saranj Innovation Private Limited, Gujarat is now a startup recognized by Department of Industrial Policy and Promotion. Namaste, Sikanto Mandal ji. नमस्ते मैम। जी। आपसे आज मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपकी कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है। जिस तरह आपने लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उससे मोटिवेट होके आपने मशीन इनोवेट करी है, ये काबिलियत-तारीफ़ है। मैं थैंक आज यू मैम। मैं आज आपके और आपकी जर्नी के बारे में और जानना चाहूँगी। अपने इनोवेशन स्वच्छता कार्ट के बारे में कुछ बताइए डिटेल में। मैम ऐसा है कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, जी। जो कि एक अर्ध सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, जय गुरुदेव बाल्य बालक विद्याधर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। हुँ, यहाँ पे क्या है, सरकारी बुक्स चलती हैं, लेकिन ये प्राइवेट एक जो है संस्था के द्वारा इस स्कूल को चलाया जाता है। तो हुँ, हमारा जो स्कूल है, ये एक जैसे कि पुराने जमानों में गुरुकुल होते थे, कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में आके पढ़ते थे, तो वहाँ की साफ सफाई खुद ही करते थे और फिर क्लास लगाते थे और फिर उसके बाद टीचर लोग आते थे और फिर पढ़ाते थे। ऐसा ही हमारे स्कूल में अभी भी होता है कि स्टूडेंट लोग जितने भी हैं वो लोग जाते हैं, पूरा स्कूल का साफ सफाई करते हैं, फिर उसकी क्लास लगाते हैं। हुँ, तो हुँ, ऐसा हुआ कि बहुत से लड़के हैं, हुँ, दोस्त लोग ही हैं जो कि साफ सफाई नहीं करते हैं, तो हुँ, खुद ही हुँ, जाओ उसे झाड़ू लगाओ, फिर हाथों से कूड़े को उठा के फिर डस्टबिन में डालो। इसमें क्या उनके कपड़े भी गंदे होते हैं, उनको बहुत एजिटेशन भी होती है कि मैं ऐसा गंदगी क्यों उठाऊं। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि जो लड़के इधर उधर जा रहे हैं कि उनके लिए क्या मैं कुछ बना सकता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मेरा साइंस लैब है, वहाँ पे बहुत से कबाड़ है, बोलते हैं कबाड़ से जुगाड़ लगाने वाला। जी। ऐसे में साइंस के टीचर हैं, वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं कि कुछ तुम नया बना सकते हो, कुछ ये है, देखो नई-नई वीडियोज़ दिखाते हैं हमको हुँ, कि तुम हुँ, ऐसा कर सकते हो। तो वहाँ से मेरा आइडिया आया एक क्यों क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊँ कि जो हुँ, कूड़ा उठाने में लड़के इधर-उधर जा रहे हैं, वो लोग आएँ, उस मशीन पे काम करें और कूड़ा को उठा के देखें। तो हुँ, सबसे पहले होती है प्रॉब्लम कि पैसे की, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ।
तो पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो लैब में क्या है, पुराने सामान रखे हुए थे, कोई साइकिल के ब्रेक्स हुए, साइकिल के पार्ट्स रखे हुए थे। तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि सबसे पहले कूड़े को उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो साइकिल जो ब्रेक होता है उसका यूज करते हुए ग्रीपर बनाया। सो ग्रीपर को बनाया जो कि कूड़े को आसानी से उठा लेता है और उसे डंप कर देता है। उसके बाद एक डस्टबिन बनाए, फिर डस्टबिन के सहायता से कूड़े उठा भी लेते हैं, फिर उसको डंप भी करते हैं। अभी जो नगर पालिकाओं में जो कार्ट वगैरह है, उसे क्या है, पूरा उलटना पड़ता है, फिर उसे सीधा करना पड़ता है। लेकिन मैं कार्ट के जो स्वच्छता कार्ट है, इसके द्वारा हम आसानी से कूड़े को उठा भी लेते हैं और उसे डंप भी कर देते हैं। ना ही हमको कूड़े को पास जाना पड़ता है, ना उसे टच करना पड़ता है। ऐसा है कि दूर से ही हम कूड़े उठा भी लेते हैं, उसको डंप भी कर देते हैं। तो ये फिर जब आप मैं कैसे करते हो बिना टच किए, बिना इसको उठाए आप कैसे इसको लेके डंप कर सकते हो? ऐसा है कि एक साइकिल का जो ब्रेक होता है, उसके साइकिल अपना रेंजर साइकिल होती है, तार भी होता है, तो उसको वायर का यूज करते हुए और उसके ब्रेक का यूज करते हुए ग्रीपर टाइप के बनाए कि हम हाँ। कूड़े के पास उसको लेके जाते हैं और हैंडल को ब्रेक को दबाते हैं, कूड़े को पकड़ लेता है और उसको फिर डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। डस्टबिन का अभी क्या है, जो डस्टबिन है उसको पूरा का पूरा उलटना पड़ता है। जी जी। लेकिन जो मेरा कार्ट है, इसके थ्रू हम जैसे आगे लेके जाते हैं, तो जैसे ऊपर लेके फिर उसको वापस लेके आते हैं, तो उसका जो कार्ट का जो डब्बा है, वो आसानी से पूरा डंप हो जाता है, जिसकी सहायता से वो कूड़े के पास हमको वहां जाना ही नहीं पड़ता। जो काउ डंक वगैरह होते हैं, जी बड़े जी। बड़े जो नगर पालिका जो वर्कर होते हैं, वो सुबह सुबह जाते हैं, रोड पे झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद उसको कूड़े को उठाने बड़े बड़े गत्ताओं का यूज करते हैं, हम्म। उससे कूड़े को उठाते हैं, फिर डस्टबिन के अंदर डालते हैं। तो मेरे कार्ट के जो इनोवेशन किया है, इसके थ्रू वो आसानी से कार्ट को उठा भी सकता है, उसको गिरा भी सकता है। उनको कोई भी ऐसा नहीं कि उसे झुकना पड़े, झुकने की भी जरूरत नहीं है, हम स्टेबल खड़े खड़े आसानी से उसको उठा सकते हैं और कूड़े को जहाँ पे उचित जगह पे लेके उसको गिराना हो, वहां जाकर उसको गिरा भी सकते हैं। फिर जब आपने इनोवेशन के बारे में आपकी टीचर से बातचीत की होगी तो उनका जी जी। कैसा रिएक्शन था, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा क्या? हाँ, जब मेरे पास में ये आइडिया आया था, मैं 9वीं क्लास में था। तो मैं अपने साइंस की टीचर है, मैं उनको जाके अपना आइडिया बताया कि सर मैंने कुछ ऐसा सोचा है, क्या ये हो सकता है? तो सर बोले हाँ ये हो सकता है, तुम अपना कुछ पेपर पे लिख के लाओ और फिर इसको मेरे पास दो। फिर मैं उनको सर को लिख के पेपर पे लिख के सर को दिया। तो सर ने बोले मैं इस आइडिया को अच्छा है, मैं इस इंस्पायर अवार्ड मानक में इस आइडिया को भेजता हूँ। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो उसको तुम्हें बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी आएंगे। मैंने बोला हम्म। सर यस सर, आप भेज दीजिए, आपकी बहुत ही अच्छी कृपा होगी। तो सर ने उसको भेज दिया। तो हम्म। 1 साल जैसे टाइमिंग आता है, उसका रिजल्ट आया जब इंस्पायर अवार्ड का, तो मेरा वो आइडिया सिलेक्शन हो गया। अरे। तो सर आए तो बहुत बधाइयां दी कि कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप तुम्हारा आइडिया जो सिलेक्शन हो चुका है, तुम्हारे अकाउंट में 1-2 दिन में 5,000 रुपए करीब आ जाएंगे, तो तुम इस पर काम चालू कर दो कि तुम इसको बनाओ। तुम्हारे पास अभी क्या है, बस आइडिया ही है, तुम इसको अभी बनाना भी है तुमको। तो मैं हम्म। बोला यस सर, जब मैं ऐसे जब पैसे आएंगे तो उसे इन्वेस्ट करते हुए उसको बनाऊंगा। तो उस बिल्कुल। पैसे जी, तो उस पैसे की सहायता से फिर हम उसको धीरे धीरे बनाया कि साइकिल के ब्रेक खरीद खरीद के लाए और बहुत सी चीजें थी जो कि हमारे लैब में, पुराने लैब है जिसमें थी। तो वहां से लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए फिर उसको बनाया। तो धीरे धीरे उसको प्रेजेंट करना हुआ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो मथुरा में है आसपास में। तो हम्म। वहां जाके प्रेजेंट किए। तो वहाँ के सर लोग हैं, बहुत लोग आए, उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मोटिवेट किए कि हाँ तुम अभी आगे क्या सोच रहे हो उसके अंदर। तुम्हें हम्म। यहाँ से तो क्रॉस कर लिया, अभी तो तुम्हें इंटरनेशनल तक जाना है, नेशनल लेवल तक सिलेक्शन होना है, बिल्कुल। तो उसमें तुम क्या कर सकते हो। जी, तो उन सर फिर बोले सर अभी मैंने तो अभी नॉर्मली ये बनाया है, इसको भी और भी मॉडिफाई करूंगा। तो हम्म। नेक्स्ट जब स्टेट लेवल में प्रदर्शन करने का मौका मिला, तो मैं इसमें इतना चेंजेस कर दिया कि वहां से भी मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले क्या हम्म। था, बस मेरा कूड़ा उठाने के लिए था, हम्म। डंपिंग करने के लिए नॉर्मल था। तो मैं हम्म। जब स्टेट लेवल पे पहुंचा तो डंपिंग करने के लिए मैं उसमें और भी वायर सबका यूज करते उसे डंपिंग के लिए उसको बना लिया। हम्म। जी, तो वहां से भी मेरा सिलेक्शन हो गया, जो कि लखनऊ में सिलेक्शन स्टेट लेवल का हुआ था। तो वहां से भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। जी, तो उसके बाद फिर मेरे नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। वहां पे और बहुत सारे इनोवेटर्स थे जो कि पूरे इंडिया से आए हुए थे। तो हम्म। सबका इनोवेशन देखने का भी मौका मिला, तो वहां पे और भी थिंकिंग आई। क्योंकि जो चीज वीडियो में देखो और उसको फिर लाइव देखो कि ये ऐसा मशीन ऐसे काम करता है, तो ये भी चीजें देखी वहां पे। और वहां वहां से भी क्या हुआ, नेशनल लेवल से पार्टिसिपेट करने के बाद वहां भी हमारा जो सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद हम लोग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जुड़े। फिर फिर
सर लोगों से जुड़े तो सर ने फिर बताया कि अब यहाँ आओ, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गुजरात आओ, फिर इनोवेशन को तुमने जो यहाँ पे बनाया है सो तुम लोहे का वहां बना सकते हो। सबसे हाँ। पहले मेरे से ये पूछा गया, मैं सर यस सर, जो मैंने यहाँ बना दिया है तो मैं वहां भी बना सकता हूँ। हम्म। तो वहाँ एनआईएफ में गए, गुजरात में रहे, 15-20 दिन वहां रहे, तो उनकी सहायता से वहां पर लकड़ी का बनाए, फिर धीरे धीरे फिर उसको मॉडिफाई और भी किए। फिर एनआईएफ ने आपको कैसे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में? एनआईएफ का सबसे बड़ा रोल देखा जाए तो एनआईएफ का ही है, क्योंकि नेशनल लेवल पर सिलेक्शन होने का मेरा क्या होता कि मैं इतनी नॉलेज मेरे पास थी नहीं कि मैं इसको करूंगा क्या आगे बढ़ा, इसको बढ़ाना कैसे करके। अभी तो क्या है, मैंने कुछ इनोवेशन कर लिया, वो मेरे पास तक ही है, मैं उसको पूरे दुनिया में कैसे फैलाऊं, इंडिया में कैसे फैलाऊं, उसको लोगों को कैसे जानकारी दूं उसके बारे में कि मैंने ऐसा किया है। तो ये एनआईएफ में ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला जिसकी सहायता से मैंने उसको इतना, मतलब सारे पूरे इंडिया में उसको फैलाया। जी वाओ। सो हमें तो एनआईएफ पे बहुत ही आभारी हूँ इनफैक्ट, क्योंकि यस जो मैम। या बिकॉज जो हमें आपके जैसे इनोवेटर्स के बारे में पता चला, और आपके इनोवेशन के बारे में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। और आपके जो वो कहते हैं ना कि एक गुरु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो एक यस गुरु बहुत ही जरूरी होता है एक बच्चे की जिंदगी में, और आपकी जिंदगी में भी आपको एक गुरु मिले हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा सा रोल निभाया है। तो जब गुरु है आपको मिले और एनआईएफ में जुड़ा, तो आज आप यहाँ तक भी पहुंच गए। और जी भगवान से प्रार्थना यही रहेगी कि जैसे आपका सपना है ग्लोबली करे, तो एज अ प्राउड इंडियन हम भी चाहेंगे कि ये सारा आपका ग्लोबली रहे। जी। बट यू आर वेरी यंग, सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर फ्यूचर? आप अभी बहुत ही छोटे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो। अभी आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान है इस चीज को लेके, या आप क्या करना चाहते हो? मैम जैसे कि मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं और भी ऐसी इनोवेशन करूँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मेरी ही तरह हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है हम्म। कि ऐसा कुछ हो सकता है। उनके दिमाग में तो, छोटे बच्चों के दिमाग में तो बहुत ही क्रिएटिविटी आती है, कुछ ऐसा बना ले, कुछ ऐसा कर ले, ये उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। उनको एनएफ के बारे में भी नहीं पता है कि और भी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं छोटा सा एनजीओ खोलूं, मतलब निःशुल्क की, कि वो छोटे छोटे बच्चों को उनको अपने पास लेके आऊं, वहां जाऊं, स्कूल स्कूल जाऊं और उनको बताऊं कि जो ऐसा भी हो सकता है, मैंने ये इनोवेशन किया है। और मैं सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैं मथुरा में रहता हूँ, मैं मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। तो जब मैं बहुत ही छोटा था तो मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। जो मेरा घर था, मतलब मेरा पापा दादाजी का घर था, वो नदी के किनारे ही था। तो हम्म। नदी जैसे बड़ी होती है ना, नदी बड़ी हो जाती है बाढ़ के टाइम, अभी भी वो नदी बड़ी हो गई है, तो हमारी जमीन जो है नदी के बीच में है अभी भी। तो हम ओह। लोग वहां, जी, तो हम लोग वहां से अभी भी यहाँ पे मथुरा में रेंट पे ही रहते हैं यहाँ पे। हम्म। तो एनएफ के माध्यम से ऐसा है कि एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पे मेरे को इनवाइट किया गया था, जब वहां पे कि मुंबई में जो हम्म। अक्षय कुमार वाला इवेंट हुआ था, पैडमैन मूवी का प्रमोशन में मेरे को बुलाया गया था। वहां के मुझे कुछ पैसे मिले थे, करीब 5 लाख रुपए मिले थे। अरे बधाई हो। थैंक यू मैम। तो उसके माध्यम से मैं एनएफ को बहुत बड़ी मतलब आभार प्रकट करता हूँ कि वहां से मुझे जो पैसे मिले उसके माध्यम से अभी मेरा एक छोटा सा घर बन गया, जो कि पश्चिम बंगाल में ही है। कि मेरे मम्मी पापा, हम लोग 15 साल से यहाँ पे हैं, जो कि अभी भी रेंट पे ही है। लेकिन अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा छोटा सा घर बन गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब पढ़ाई के बाद मम्मी पापा वहां जाएंगे, फिर हम उसकी जॉब करेंगे और छोटा सा एनजीओ खोलूंगा, जो कि छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करेंगे कैसे आइडिया सोचते हैं। अब बच्चों को ये भी नहीं पता कि आइडिया सोचते कैसे करके उसके बारे में। तो ये भी बहुत सी बातें हैं जो कि मैं उनके साथ शेयर करूंगा और उनको बताऊंगा। जी ये बहुत ही नेक सोच है आपकी, एक एनजीओ खोल के। आप भी खुद ही इतने छोटे हो और इतना कमाल का काम कैसे कर लेते हो। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत कर रही हूँ, इतना सीखने को, हम भी आपसे इतना कुछ सीख रहे हैं। कमांडेबल, आई शुड से दैट। जी अच्छा, आप बताइए, आपका जो इनोवेशन आज एक प्रोडक्ट बन गया है, जी और ये इंडिया को साफ रखने में बहुत मदद करेगा, ना ही बल्कि इंडिया में अगर ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली भी यूज करे, तो ऑब्वियसली ग्लोबली भी जी। साफ सफाई हर जगह होती है, तो वो भी यूज हो जाएगी। आप सफाई कर्मचारियों को और एक पब्लिक को क्या संदेशा देना चाहते हो? सबसे जो नगर पालिकाओं के वर्कर होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनकी होती है कि वो लोग आते हैं, वो अपने हाथों से कूड़ा उठाते हैं,
और फिर जो पब्लिक है वो ये नहीं सोचती है उनके बारे में कि ये गंदगी है, इसको हम ऐसे रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। उसके लिए पर्टिकुलर हमने एक डस्टबिन बना रखा है कि सूखे कूड़े के लिए ये है और गीले कूड़े के यहाँ पे डालो। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते हैं, इधर उधर ही फेंक देते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग हैं सैनिटाइजर, मतलब जो वर्कर है वहाँ के लोग, जो काम करते हैं, उन पे ऊपर बहुत प्रेशर आता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग जॉब करें, उनका काम यही है कि वो साफ सफाई ही करते रहे। उनकी भी लाइफ होती है। वो लोग भी कहते हैं कि जब वो लोग आते हैं तो बोलते हैं ना कि कचरा वाला आ गया, कचरा वाला आ गया। लेकिन बिल्कुल कचरा वाला वो नहीं होता है, कचरा वाले हम होते हैं कि वो हम फेंक रहे हैं उस कचरे को। वो तो बिल्कुल सही। सफाई वाले हैं। वो वो सफाई सफाई वाले हैं कि वो आ रहे हैं कूड़े का, हम जो गंदगी फैला रहे हैं उस गंदगी को वो साफ कर रहे हैं। तो वो जो पब्लिक है, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, जहाँ का जिस कूड़े का यूज हम लोग यहाँ फेंकना है, हम उसी उचित जगह पे फेंके। ऐसा नहीं अनावश्यक जगह कहीं भी फेंक दो कि यहाँ हमने ये खाया इसको वहीं फेंक दो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत खूब कहा आपने सिकांतो। सफाई रखना आज एक जरूरत है जी और देश के नागरिक होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि हम भी साफ सफाई का ध्यान बहुत खूबी से रखें। और ये बात मैं भी आपसे रिलेट करती हूँ, कचरा फेंकने वाले हम कचरे वाले हैं, ना कि वो तो साफ सफाई करने वाले हैं। जी और आपने एक ऐसा खूबसूरत सा इनोवेशन क्रिएट किया है जहाँ पे विदाउट टचिंग एंड विदाउट इवन फीलिंग वेरी डर्टी अबाउट इट, आप कचरा उठा के वो डंप कर सकते हो। जी सोचो ये कितने एक हाइजीन प्रोडक्ट होगा और कितने बस लोगों को हेल्थ के लिए भी काम में आएगा। जी। अभी भी मैम जो नगर पालिका में भी जो कार्ड चल रही हैं, हम्म, वहाँ के क्या है, उनको झाड़ू लेने के लिए अलग से झाड़ू ले जाना पड़ता है। उनको हेलमेट भी नहीं दिया, उनको जूते भी नहीं दिए जाते हैं। हाँ, जूते दिएंगे, लेकिन हमारे जो स्वच्छता कार्ट है उसमें क्या अलग अलग हमने पार्ट्स बना रखे हैं कि यहाँ पे उसको झाड़ू लगा सकते हैं, यहाँ पे हम्म, उसको डंडा लगा सकते हैं, और उसका एक बॉक्स भी बनाया जिससे पीपीए बॉक्स, जैसे हम्म, नहीं कि लग जाती है किसी को, तो उसमें आसानी से वो वहां से पीपीए बॉक्स से अपना मेडिसिन या ग्लव्स और जो कपड़े पहनते हैं वो सारे के सारे चीज उस कार्ट के अंदर ही पूरा पैकेज है, मतलब पूरा पैक है उसी में, कि आसानी से उसमें यूज किया उसको और वापस वहीं पे रख दिया, ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? अ, एस जी जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा है, जैसे मैं जुड़ा हूँ स्वच्छ भारत अभियान में, आप भी जुड़े हैं। अपने आसपास जहाँ भी है साफ सफाई बनाए रखें। ऐसा ना सोचें कि मैं क्यों साफ करूं, लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि ये साफ कर रहा है क्यों अपने। ऐसा है ना कि लोग सोचते हैं अपने घर के सामने भी साफ करना, नहीं सोचते हैं, सोचते हैं वो सफाई वाला आएगा, कचरा वाला है, नॉट सफाई वाला, और कचरा वाला आएगा वो झाड़ू लगाएगा, पूरे झाड़ू लगा कर उसे साफ करेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुद बिल्कुल। की खुद का साफ सफाई अपने सामने का कूड़ा, यहाँ ऐसा है कि हम अगर साफ सफाई नहीं कर रहे, हम कूड़े को हम कचरा भी ना फैलाएं। हम हम्म, सोचते हैं ना कि हमने कहीं बिस्किट खाया तो उसको वही रोड पे फेंक दिया। हम्म, हम हम्म, वो रोड पे कोई ना कोई तो उस कूड़े को उठाएगा ना। जब हम हम्म, अगर उसकी साफ सफाई नहीं कर सकते तो हम उसको मतलब गंदगी हम फैलाए भी। खाए नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपका इनोवेशन किसी को या आपका टेक्नोलॉजी खरीदना हो, लेना चाहे, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई एनजीओ हो, या आपकी जो मशीन आप जो बना रहे हो वो अगर आपसे कोई खरीदना चाहे, तो आप से कैसे जुड़े? कोई ईमेल आईडी, कोई कांटेक्ट नंबर, या कैसे इस चीज को हम लेके आगे जा सकते हैं? हाँ, इसके लिए मैम आप एनआईएफ से कांटेक्ट कर सकती हैं कि बिल्कुल। उनके वेबसाइट पे भी जा सकती हैं www.nif.com। यहाँ से भी उनके मेल का जो वेबसाइट पे जाके उनको मेल कर सकते हैं और आसानी से ले सकते हैं। और info@nifindia.org इनका मेल आईडी है, यहाँ पे मेल करके आसानी से वहां से भी ले सकते हैं। और भी इंक्वायरी हो उनसे पूछ सकते हैं। और आप जी अपना नंबर या ईमेल आईडी शेयर करना चाहोगे? जी मैम, जैसे कि मेरा नाम सिकांतो मंडल है, तो मेरा आईडी ईमेल आईडी भी sikantomandal@gmail.com। स्पेलिंग बोल दीजिए ताकि जो भी अगर आपको मेल से जुड़ना चाहे, आपको फाइनेंस करना चाहे, आपको एनआईएफ के साथ जुड़ना चाहे, आपके साथ जुड़ना चाहे, तो वो कैसे जुड़ेंगे, ताकि जी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। आपका फोन नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही जी ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग सिर्फ एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ओके ओके। स्पेलिंग है SIKANTO सिकांतो, MANDAL मंडल, एस आई KANTO के ए एन टी ओ MAN MANDAL। DAL। यस, सिकांतो मंडल @gmail.com। यार आपको मंडल सिकांतो @gmail.com, ये दोनों मेरे ही ईमेल आईडी हैं।
और All right. नंबर है 955 जी 955 7 7 65 65. 1131 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग यही सेम नंबर है मेरा। All right. So those who want to connect to Sikanto ji, his email ID is sikantomandal@gmail.com, mandalsikanto@gmail.com, sikantomandal@gmail.com. And you can contact him on his phone number 955-765-1131. जी 955-765-1131. जी मैम। और आप कुछ कहना चाहोगे इस आपकी पूरी जर्नी के बारे में? जैसे कि मैं हूँ, अब मैं तरह और भी स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो उनके लिए है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब इतने प्लेटफॉर्म है कि वहां पे वो लोग जुड़ के वो चीजें कर सकती हैं, बस उनको नॉलेज की जरूरत है, उनको वो चीज बताने की जरूरत है कि तुम भी ये सब चीज कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देखें तो उनको जैसे पता है कि ये NIF हुई, ये फाउंडेशन है, ये छोटे छोटे बच्चों को इतना मोटिवेट करती है और उनका इनोवेशन को इतने छोटे से जगह पे लेके वहां तक ऊंचे ऊंचे जगह पर पहुंचाती है। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को बताएं, अपने बच्चों को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है और मतलब NIF है, फाउंडेशन है, ये लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चों की मदद करती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और इस देश को साफ रखना सिर्फ सफाई कर्मचारियों का जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग को की सोच बदलनी होगी। इसी विचार के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स, योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वेल-बीइंग ऑफ द पब्लिक, हाईली रेस्पेक्टेड अबाउट दिस. This was innovated for cleaning, has made a very easy job for everybody. Thank you so much for being such an amazing audience. Let me take an opportunity to give you all a vote of thanks. It's a great honor to propose the vote of thanks to Master Sikanto Mandalji to find time to grace this special interaction. I'm extremely grateful for you sharing your words of encouragement and giving us valuable inputs. Your eminent presence has indeed made this interaction a memorable one. As they say, the only way to discover the limit of the possible is to go beyond them into the impossible. Today, we have learned a lot about your innovation. I hope a lot of people are using the machine and attaching themselves to the natural way once again. I believe our audience has today learned a lot more for sure. For sending any reviews and suggestion, please contact us, tablessocial@gmail.com and or bd@nifindia.org. थैंक यू, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंडेवर्स. धन्यवाद. और आप खूब बरकत करें. और आपके इनोवेशन के बारे में जब ये प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करोगे तब हम लोग आपका और एक इंटरव्यू करेंगे और इस चीज के बारे में और बात करेंगे. थैंक यू मैम. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू.